बंद करो बंद करो ये नफरत की सियासत बंद करो बंद करो बंद करो ये धमकाने की सियासत बंद करो बंद करो बंद करो ये धमकाने की सियासत बंद करो रिलीज करो भाईजी साहब को रिलीज करो जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद वक्त बिल के खिलाफ बोलेंगे वक्त बिल के खिलाफ बोलेंगे गिरफ्तारी के बाद भी बोलेंगे गिरफ्तारी के बाद भी बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद भाईजी साहब को रिलीज करो प्रेसिडेंट साहब को रिलीज करो प्रेसिडेंट साहब को रिलीज करो ईडी से धमकाना बंद करो ईडी से धमकाना बंद करो जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है एसडीपीआई का नारा है हर मजलूम हमारा है ईडी से धमकाना बंद करो भाईजी साहब पर जुल्म खत्म करो भाईजी साहब पर जुल्म खत्म करो वक्त हमारा हक हमारा वक्त हमारा हक हमारा बोलना हमारा हक है बोलना हमारा हक है जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद वक्त की लड़ाई आगे बढ़ेगी वक्त की लड़ाई आगे बढ़ेगी हक की लड़ाई बढ़ेगी हक की लड़ाई आगे बढ़ेगी प्रेसिडेंट साहब को रिहा करो ईडी वालों को विदा करो ईडी वालों को विदा करो भाईजी साहब को रिलीज करो जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीआई जिंदाबाद ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತೇನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪವರ್ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಿಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ MK ಫೈಜಿ ಅವರನ್ನು ಏನು ನೀವು ಇಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದು ಕಾನೂನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರನ್ನ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜೈಲು ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಈ ಮಹಾನಾಯಕ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇ ನೀವು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.
ಮುಂದಿನ ದಿನ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಆರಂಭ. ಇದು ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ನೀವು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ದೇಶ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿದರವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸಂವಿಧಾನ ನಂಬಿದರವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾವತ್ತೂ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ SDP ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೀದಿಗಿಳಿತಾರೆ. ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಶಾಹುಲ್ ಜಮಾಗೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आजादी देने के लिए इस मुल्क को सही तरीके का प्लेटफॉर्म देने के लिए एक ताकत इंशाल्लाह तैयार होगी. वो ताकत जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया होगी. तो भाइयों, मैं आखिर में इस मुल्क के गृह मंत्री कहलाने वाले अमित शाह, जो गुजरात से तड़ी पार किया गया है, वो एक शख्स है. इस मुल्क में गुजरात के राइट्स में FIR होने वाला इस मुल्क का जो है प्राइम मिनिस्टर है. इन तमाम को समझने की सोचने की जरूरत है. जुल्म हक जो है हक रहेगा, जुल्म जो है आगे तक नहीं बढ़ेगा. इंशाअल्लाह इस जुल्म के खात्मे के लिए तमाम दलित, तमाम मुस्लिम, तमाम क्रिश्चियन सब मिलकर इकट्ठा होंगे. तो इंशाअल्लाह हम लोग जो है इस कार्य खैर को जो आगे बढ़ा सकते हैं. तो भाइयों, आखिर में डरने का सवाल यहाँ पर पैदा ही नहीं होता. अगरचे अल्लाह को कोई गाली दे रहा है, नबी की कोई बेहुरमती कर रहा है, हमारी बहन को जो है उसके हिजाब के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगरचे ये यहाँ पर जो है बुराई है, ये जो है यहाँ पर जुर्म है, तो ऐसे 1000 जुर्म करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है तैयार है. कोलार, यहाँ तक कि कर्नाटक स्टेट, यहाँ तक जो है भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, जहाँ कहीं भी जुल्म और ज्यादती हुई, जहाँ कहीं भी ऊंच नीच हुई, जहाँ कहीं भी जो है निचले किस्म का जो है बर्ताव हुआ, तो इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया खड़कर जो है सबके सामने बात करेगी इंशाअल्लाह. नेशनल जो है जनाब इनके फैजी साहब को जो है ED ने अरेस्ट किया. वाज़ा है, बहुत तफसील से जो है बताने की बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्टकट में बात कर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि बातें करने के लिए बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन काम करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है. भाइयों, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी साहब जनाब शाहरुख साहब ने जो है बहुत अच्छे तरीके से आप तमाम के सामने बहुत सारे बातें जो है पेश की. हालात चलते चलते ऐसे आ गए कि किसी को भी अपनी खुदमुख्तारी का, किसी को भी अपने वजूद का जो है ख्याल ही नहीं रहा. हम देखेंगे इस मुल्क में दलितों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर जब कभी भी चाहा RSS ने, BJP सरकार ने जो है उनके ऊपर जो है गुंडागर्दी की, लेकिन किसी ने भी जो है खड़कर बात करने की हिम्मत नहीं की. सब लोग जो है हर एक किस्म की गुलामी को जो है लेकर, मानकर, तस्लीम कर जो है चुप बैठे रहे. लेकिन 15 साल से एक सोच बनी, 15 साल से एक आवाज़ बनी, 15 साल से हमारे कई लीडर जो है जेलों में हैं, 15 साल से हमारे कई लीडर जो है हर रकम का जो है एहतजाज करते रहे. ये 15 साल का जो मूवमेंट, 15 साल की जो आवाज़ बनी, उसी आवाज़ का नाम जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है. हमें डराने के लिए, हमें धमकाने के लिए तारीख आप तमाम को पता है. शद्दाद आया, नमरूद आया, हारून आया, फिरौन आया. किसी ने भी जो है हमारी तारीख को तहस नहस करने की कोशिश की, वो खुद जो है फना बर्बाद हो गया. आज ये RSS, आज
ये बीजेपी सरकार जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को जो है तहस नहस करने में, अलग अलग एजेंडे में हमें मुलविस करने में लगी है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का एक बाल भी जो है बीजेपी सरकार से बात नहीं करता। भाइयों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस हिंदुस्तान के लिए, इस भारत के लिए आखिरी उम्मीद है। चाहे किसी भी जात का क्यों ना हो, वो दलित हो या क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या पिछड़े तबका का क्यों ना हो, हर एक को अगरचे भारत में, हिंदुस्तान में किसी का सहारा है तो वाहिद सहारा है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। हमें आजमाना, हमें डराना, हमें धमकाना बंद कर देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। अगरचे हमारे नेशनल प्रेसिडेंट साहब जनाब MK फैजी साहब अगरचे उनकी रिहाई नहीं हुई तो कोलार का हर एक चक्का जो है हम लोग इंशाल्लाह जाम कर देंगे। तो आप तमाम से गुजारिश है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी जात की, किसी कम्युनिटी की पार्टी नहीं है। आप तमाम को पता है, बहुत सारे दलितों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, क्रिश्चियनों के ऊपर यहाँ पर जब चर्चेस पर अटैक हुआ, उस वक्त पर काम करने वाली, उस वक्त पर एहतजाज कर कर खुद जो है अरेस्ट होने वाली, अगर जो कोई लोग थे, कोई सियासी पार्टी थी, वो सिर्फ एक ही एक पार्टी थी, वो जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। हमारे इरादों को, हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़, हमारे बहनों के साथ बेहुरमती, हमारे दीन के साथ बेहुरमती, हमारे अल्लाह के ऊपर गाली गलौज, हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेहुरमती हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर एक चीज़ का जो है एक लिमिट होती है, एक हद होती है। आज जो है ये फिस्ताई लोगों के हाथ में जो है गवर्नमेंट रहेगी। इंशाल्लाह ये एक वक्त आएगा, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पावर को लेकर इन तमाम को जो है कुचल लेकर जो है इंशाल्लाह आगे बढ़ी।